Hello everyone, welcome to our channel. So this video is all about your UPSC CBI recruitment 2024 or 25. ठीक है, तो next year एग्जाम होगा तो definitely it will be 25. So how to prepare for this exam, what will be syllabus, every detail in this video I will share with you guys. Before that, the post is assistant programmer. Already I made detailed notification video about it. Okay, तो आप वो देख सकते हो. In the comment box you will get the link. Just watch that video carefully. And form last date is 28 November 2024. So before that you can apply to this recruitment. Okay, so let's start the video. So before going forward, UPSC CBI is the part of your master success pack, that is your MSP, and separate success pack is also available. I hope you watched that video. Okay, already I uploaded the video before this strategy video, so you can watch that video. I will give you the link in the comment box. So if you are preparing for multiple recruitments along with UPSC CBI, then you can join MSP, that is Master Success Pack, and in single fee you can target multiple recruitments. So currently which recruitments are part of your Master Success Pack? Let's have quick look on that. So first UPSC CBI, okay, both process like CBT and interview we will cover in your MSP. Then NTRO scientist be CBT plus interview, okay, RRB technician CBT, RRB JE which is scheduled on in the December month, CBT 1 plus CBT 2, ECIL GET CBT plus interview, then Mahatransco AE CBT for Maharashtra candidate, HL MTTT CBT plus interview. HL is upcoming recruitment, it is not covered yet or it is not released yet, okay, so just wait for notification video. And IATC also upcoming recruitment, so it will be also your upcoming recruitment, okay. In IGP currently NFL MT and SBI assistant manager system is going on or it is covered, right? So if you are preparing for any one, any two, any three along with UPSC CBI, you can target. And for computer science you can see UPSC CBI, the NTRO scientist be, okay, same recruitments are there for computer science also. In the comment box you will get the link to join MSP of your branch. Please join MSP of your branch only, okay. There it is written computer science and there it is written electronics and communication. So those who are giving last attempt for UPSC CBI, strictly I will recommend you guys to join MSP, so that it is not like because of lack of guidance you should miss this golden opportunity from UPSC. Okay, चलो तो आगे बढ़ने से पहले अभी the most important factor motivation, कुछ तो आपको drive करना चाहिए to prepare hard for this recruitment. Okay, बिकॉज ऑलरेडी यू सॉ नंबर ऑफ वैकेंसीज 27, तो बहुत सारे मुझे मैसेज आए कि सर वैकेंसी कम है, लेकिन अगेन अपना टारगेट जो है वो सिलेक्शन है. यू डोंट नीड टू सी एट लुक एट द वैकेंसीज, ठीक है. नंबर ऑफ वैकेंसी पे देखना नहीं है. वैकेंसी बढ़ गया तो पब्लिक भी बढ़ता है, वैकेंसी कम है तो पब्लिक भी कम रहता है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर मोटिवेशन दैट directly it is a permanent government job and not government job, it is group B gadgeted post in central government of India. तो बहुत बड़ी बात है. एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, ओके, स्टार्टिंग में आपको गैजेटेड पोस्ट मिल रहा है. बहुत कम रिक्रूटमेंट आते हैं गैजेटेड पोस्ट के, तो यूपीएससी इज अलॉन्ग वन ऑफ देम, ठीक है. और गैजेटेड पोस्ट है, दैट्स व्हाई वैकेंसीज कम है. हमेशा गैजेटेड पोस्ट के लिए वैकेंसी आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है. देन सैलरी 10.5 लाख CTC, तो स्टार्ट में ही आप 10.5 लाख स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है. इफ यू ज्वाइन एनी IT कंपनी, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, तो स्टार्ट में आपको 4 लाख पैकेज मिलता है, ओके. ईयर आपको डायरेक्टली 10.5 लाख CTC मिल रहा है, तो बहुत अच्छा मौका है. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है. इन साइबर सिक्योरिटी एरिया, इन प्रोग्रामिंग एरिया बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है. ओके, सो अभी मैंने बोल दिया, तो इट इज़ नॉट ईजी टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है. कुछ चैलेंजेस होंगे जो हम ओवरकम करेंगे थ्रू अवर स्ट्रैटेजी वीडियो. आप MSP ज्वाइन करोगे, सक्सेस पैक ज्वाइन करोगे, मॉक टेस्ट, तो एवरीथिंग वॉट एवर आई एम गिविंग यू विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम. तो फर्स्ट चैलेंज जो है वो है यस नेगेटिव मार्किंग, ठीक है. तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहता है, नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, सो ये आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है. और नेगेटिव मार्किंग जब भी आता है 30% प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है. लेकिन स्टिक वी कैन हैंडल दैट थिंग इन अवर एग्जाम हॉल, नो नीड टू वरी, ठीक है. बिकॉज प्रेशर जो है सिर्फ आपको नहीं रहेगा, along with you obviously it will be applicable for all the candidate those who are giving the exam, ठीक है. सेकेंड टाइम जो है वो है प्रिपरेशन टाइम. तो सी मेन अभी जो प्रिपरेशन टाइम है एज कंपेयर टू, अगर मैं सिलेबस देखूँ, बहुत वास्ट सिलेबस है, ओके. मतलब इधर सिलेबस डिफाइन नहीं है, जस्ट हम प्रॉपर अपना जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है और जो भी मतलब रहता है अपना स्ट्रैटेजी वीडियो में उसके अकॉर्डिंग मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है. डेफिनेटली इट विल बी मोर देन इनफ, बट मेन थिंग इज दैट थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम इसको देना पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर जॉब गोइंग स्टूडेंट, इफ़ यू आर प्रोफेशनल, देन लिटिल बिट इट विल टेक टाइम, ठीक है. चैलेंजिंग रहेगा. सो उस केस में क्या करना है वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा आराम से, ठीक है. अभी आराम से हम चलेंगे, टेंशन लेना नहीं है, एक एक चीज़ को हम आराम से हैंडल करेंगे. बट बिफोर दैट यू शुड नो कि आगे अगर होल है तो वो होल किधर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए. देन ओनली यू कैन जंप फ्रॉम दैट होल, राइट. तो प्रिपरेशन टाइम कम है, बट येस स्मार्ट वे से स्ट्रैटेजी के साथ अगर प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन गेट गुड स्कोर इन योर CBT, ठीक है.
ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अभी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपको मिलेगा. सो व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेड एग्जाम डे. योर एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड मार्च मंथ. ठीक है, मार्च 2025 ऑब्वियसली, राइट. और कब हो सकता है, तो थर्ड वीक ऑफ मार्च, मतलब ये जो वीक है, ठीक है, 16 से लेके थर्ड और फोर्थ वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. मोस्टली जो है संडे को एग्जाम होता है, तो एक तो 16, 23, नहीं तो फिर 30. ठीक है, तो ये एग्जाम हो सकता है. थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है, 1 or 2 months extra also you may get, but again by considering March month we will form our strategy और उसके हिसाब से हम चलने वाले हैं, so that एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज रहती है बाद में भी वो अपने को कवर करने के लिए. ठीक है, तो फिलहाल जो टारगेट डेट अपना रहेगा वो थर्ड वीक मार्च रहेगा. उसके हिसाब से यू कैन प्लान ऑल ऑफ योर स्टडी एंड ऑल ऑफ योर थिंग्स. ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट आपका आने वाला है. तो मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, दोज हु हैव फियर अबाउट नॉन टेक्निकल पार्ट, सो इट इज गुड पॉइंट कि नॉन टेक्निकल इज नॉट देयर. ठीक है, इन टेक्निकल वी हैव 120 क्वेश्चंस यू विल गेट, टोटल 2 hours यू विल गेट, मतलब 120 मिनट्स. ठीक है, और टोटल जो मार्क्स है इधर वो है 300 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चंस वी हैव 2.5 मार्क्स. ओके, एंड नेगेटिव मार्किंग इज 1/3 ऑफ 2.5. ठीक है, 2.5 divided by 3, it is your negative marking 0.82 something, right? So this is the information about your exam pattern. Okay, now syllabus. Now see, syllabus जो है अभी फिलहाल जो है डिफाइन नहीं किया है यूपीएससी ने. ठीक है, एग्जाम को जब 1 महीना रहता है तब यूपीएससी अपना सिलेबस डिक्लेयर करता है, राइट. बट ऑब्वियसली बिफोर 1 month इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द थिंग्स, राइट. सो दैट्स वाई जो अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा उसके हिसाब से हम चलने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है प्रॉपरली, राइट. सो व्हाट विल योर सिलेबस, सो इन फ्रंट ऑफ यू यू हैव सिलेबस, डोंट. ठीक है, तो डरो मत, बहुत सारे टॉपिक है लेकिन इतना करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छे से स्मार्ट वे से करेंगे, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वी विल गो. सो फर्स्ट इज योर C#, PHP, .NET, C, Java, C++, Python. ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसको मैं अगर एक ग्रुप बनाऊं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये आएगा. ठीक है, अभी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने हैं सर, सो दैट आई विल डिस्कस मच फर्दर स्ट्रैटेजीज. ठीक है, तो अभी फिलहाल डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट नोट डाउन द सिलेबस. Oops concept will be there obviously, right. Then your compiler design, DBMS, data structure algorithm, software engineering, HTML, XML, CSS, JavaScript, computer organization architecture, operating system, TOC, computer network, discrete mathematics और miscellaneous. ठीक है, अभी आप बोलोगे कि इतना होने के बाद भी और miscellaneous, तो yes, that is the specialty of this recruitment of UPSC. तो miscellaneous मतलब इधर से, इसका मतलब ज़्यादा वेटेज नहीं होगा, हार्डली इधर से आए तो 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे आउट ऑफ 120. तो दैट्स वाई ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. हाँ, जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट है, जो अपना गवर्नमेंट जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एमएसपी में है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, राइट. तो देन इन दैट केस यू कैन कवर अप द थिंग्स, राइट. बट डोंट नीड टू वरी फॉर दैट, बिकॉज मेन थिंग इज दैट यू डोंट नीड टू कवर 100% सिलेबस टू गेट सिलेक्शन. ये कभी भूलो मत. ठीक है, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, और यही स्टेटमेंट यूज करके बहुत सारे जो अपने सिलेक्शन है एमएसपी में या आईजीबी में होते हैं. ठीक है, तो दैट यू शुड नॉट फॉरगेट, एंड दिस इज द माइंड सेट बिफोर योर प्रिपरेशन स्टार्ट. ठीक है, ओके. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर फेज वाइज स्ट्रेटेजी. तो जिनको पता है आप बहुत खुश होंगे. Yes, now those who are first time watching this video, first time connected to Apna Government Job, so what is phase wise strategy in simple summary? So step by step I will guide you guys, okay, और properly particular time period के लिए आपको मैं बताऊंगा क्या करना है, वो आपको ट्राई करना है आपके साइड से to complete the things whatever I will mention, right? So now there will be 3 phases for your exam. So I have divided whole year strategy in 3 phases, phase 1, phase 2 and phase 3. ठीक है, तो अभी phase 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो phase 1 का जो पीरियड है वो क्या रहेगा? So I am taking from 1st December, but you can start from tomorrow also, today also, आपके ऊपर है. ठीक है, लेकिन मैं 1st December से ले रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट 3-4 दिन बाकी है, अपना नवंबर मंथ खत्म होगा, राइट. और ये जो पीरियड रहेगा phase 1 का, तो that will be your 1st December to 15th. ठीक है, तो 15 की जगह हम 25 करते हैं, 25th ऑफ डिसम्बर. ठीक है, तो ये जो आपका है ये पीरियड रहेगा फॉर फेज 1. तो नाउ वॉट एवर आई विल टेल यू इन दिस फेज 1, जो आगे मैं बताऊंगा सब्जेक्ट्स, वो आपको ट्राई करना है कवर करने के लिए इस पर्टिकुलर पीरियड में. ठीक है, सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ योर फेज वाइज स्ट्रेटेजी. ओके, सो what are the name of the subject, list of subject. So first we will take operating system, computer network, ठीक है, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट. तो ये जो मेन 3 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है आप लोगे. ऑलरेडी इसका सिलेबस एज पर गेट एग्जाम जो है, गेट एग्जाम का सिलेबस जो रहता है, ठीक है, अगर आपको पॉइंट वाइज चाहिए तो वो आप फॉलो करो, उतना इनफ है. ठीक है,
नहीं तो फिर अगर इसमें भी डिटेल चाहिए तो मुझे मैसेज करो, तो मैं अपना जो यूपीएससी सक्सेस पैक है उसमें मैं डाल दूंगा पॉइंट वाइज, और फिर आपको शॉर्ट के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली आपको चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ओके। सो दिस इज द सिलेबस। नाउ मैंने आपके सामने रखे हैं लैंग्वेजेस, राइट। सो लैंग्वेजेस में अभी सी इट इज़ नॉट फिक्स कि सी के जो 2 क्वेश्चन आएंगे, C++ के 5 क्वेश्चन आएंगे, जावा के 3 आएंगे, पाइथन के 1 आएंगे, PHP के 5 आएंगे, ठीक है। दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट फिक्स। एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे कैन गिव फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो अभी इसमें से आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो है बाय डिफॉल्ट सबको ये करना है कंपलसरी, सी एंड जावा बाय डिफॉल्ट सबको करना है, ठीक है। इफ यू आर एक्सपीरियंस, इफ यू आर फ्रेशर, इफ यू हैव एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन सी एंड जावा आपको आना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। तो ये मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ, मतलब मैंडेटरी है, ठीक है। सेकेंड, अभी वॉट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नो, तो मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है, सपोज आप .NET में काम कर रहे होंगे या एज अ फ्रेशर आपको पाइथन पता होगा, पाइथन ईजी है, PHP पता होगा, ठीक है, C# पता होगा, C++ पता होगा, जो भी लैंग्वेज आपको आता है वो लैंग्वेज आप लोगे। इसमें से जो मैं लिखा है ना उसमें से आपको करना है, ठीक है। और सेकेंड जो ये हो गया। थर्ड, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो डेफिनेटली आप जिसमें काम कर रहे हो, ठीक है, वॉट एवर यू आर वर्किंग इन टेक्नोलॉजी, तो वो जो है आपको लेना है, ठीक है। अभी जो फ्रेशर्स है, तो सी जावा के साथ आप पूछोगे कि मैं क्या करूँ फिर, राइट। मुझे कुछ पता नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी जावा भी नहीं आता, अभी स्टार्ट करूँगा मैं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो सी जावा आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप पाइथन एंड PHP ले सकते हो, ठीक है। बाकी .NET C# करने की जरूरत नहीं है, सी इतने सारे लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो बेसिक आप पढ़ सकते हो, लॉट्स ऑफ वेबसाइट आर देयर, ठीक है। ट्यूटोरियल पॉइंट है, गिग्स फॉर गिग्स है, उधर से आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो रेफर करके भी अपना काम हो जाएगा। बट एटलीस्ट कोई भी 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करके रखो, ठीक है। मतलब प्रोग्राम अगर आपके सामने आए तो उसका आउटपुट निकालना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि जो लेवल रहेगा पेपर का वो रहेगा मॉडरेट, डायरेक्टली मॉडरेट रहेगा, ईजी बिल्कुल भी नहीं रहेगा पेपर यूपीएससी का, ठीक है। और मॉडरेट लेवल जब भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसका ये डायरेक्ट मीनिंग है कि आपको जो है प्रोग्राम्स आने वाले हैं उसका आउटपुट आपको निकालना है, ठीक है। टाइम कितना है, 120 मिनट्स, तो 120 मिनट्स में अगर प्रोग्राम आ रहे हैं तो सोचो कितना टफ होगा आउटपुट निकालना। तो इन दैट केस प्रॉपर अपना एक तो फंडामेंटल बिल्ड करना है, ठीक है। यूट्यूब का आप यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब को छान मारो, नहीं तो फिर नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी करो, लेकिन 3 से 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट होगा और प्रोग्राम विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज आप ये क्रैक नहीं कर पाओगे। और अगर क्रैक कर भी लिया, इफ़ यू गेट कॉल फॉर द इंटरव्यू, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट भी चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि डायरेक्टली वो इंटरव्यू लेंगे क्या, क्योंकि मेंशन है वैसा कि अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं है तो फिर इंटरव्यू डायरेक्टली वो लेंगे, ठीक है। नाउ सी मेन थिंग जो अपना वीडियो है, ठीक है, वीडियो को अप्रॉक्सीमेटली 2K प्लस व्यूज़ हो गए हैं, ठीक है। और मेरे वीडियोस जो मतलब पब्लिक स्पेसिफिक है, इफ़ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैंने लिखा है सामने ही लिखता हूँ मैं, बाकी चैनल ऐसा नहीं है मेरा, आपको पता है, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन है सामने आपको लिखता हूँ, तो पब्लिक अगर एलिजिबल है तो क्लिक करके देखता है, राइट। तो 2K प्लस अगर व्यूज़ हैं तो मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट 1000 कैंडिडेट तो रहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस MCA वगैरह, MSc भी है, MSc कंप्यूटर साइंस वगैरह, ठीक है। 1000 प्लस आराम से है, ओके, ज़्यादा ही रहेंगे, 5000 10,000 भी जा सकता है ये अकाउंट, राइट, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप मान के चलो कि आपका CBT उनको कंपलसरी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर 1000 कैंडिडेट भी है तो इट इज़ नॉट ईजी टू कंडक्ट इंटरव्यू ऑफ 1000 कैंडिडेट, ठीक है। तो इधर वो फिल्टर लगाएंगे ही लगाएंगे, और फिर 27 के जो नंबर है वैकेंसी का, उसमें से अगर 1:5 का भी वो रेशो निकाले, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जाता है आपका 135, ठीक है। 135 कैंडिडेट का आराम से इंटरव्यू ले सकते हैं वो, ठीक है। और उनके लिए पेपर सेट करना, एग्जाम कंडक्ट करना बड़ी बात नहीं है, यूपीएससी का प्रोसेस आराम से चलता है, तो वो टेंशन मत लो। तो इसलिए 99% आपका CBT होने वाला है, या ऑफलाइन पेपर होगा, यूपीएससी का ऑफलाइन पेपर रहता है, ठीक है, OMR बेस रहता है पेपर, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं जब भी अपडेट आएगा, अभी फिलहाल टेंशन मत लो। लेकिन 99% CBT होगा। 1% अगर उन्होंने सोचा कि ठीक है चलेगा 1000 पब्लिक का इंटरव्यू लेते हैं तो फिर वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1% चांस है, 99% CBT कंपलसरी होगा। एंड ऑब्वियसली वी आर प्रिपेयरिंग बाय कंसिडरिंग 99% सिनेरियो, ठीक है, मतलब CBT के हिसाब से हम प्रिपेयर करने वाले हैं, ओके।
तो आई होप लैंग्वेज का आपको समझा। समरी अगेन मैं दे देता हूँ, सी और जावा कंपल्सरी रहेगा और इसमें से कोई भी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अच्छे से करके जाओ, ठीक है, जिसके कोडिंग आपको आना चाहिए। ओके, पूरा ये मिला के अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास 3-4 लैंग्वेज हो गए और सपोज बाकी की भी लैंग्वेज है, सबसे 3-4 आपने बहुत स्ट्रांग कर लिए, ठीक है, जो प्रॉपर आप मतलब कोडिंग कर पा रहे हो, राइट। बाकी 2 जो बचे तो उसका एटलीस्ट थ्योरी पढ़ के रखो, मतलब थ्योरी क्वेश्चन अगर आता है, थ्योरी भी पूछा है यूपीएससी पूछेगा, बट मोर इट इज ऑल अबाउट योर प्रोग्रामिंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो वो पेपर उधर जाता है। तो थ्योरी भी आएगा, तो थ्योरी पढ़ के रखो बैकअप के लिए। सपोज मैं C++, जावा, PHP, C# कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट पाइथन और .NET का थ्योरी मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन डू। ओके, एंड डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, यू ऑलरेडी नो दोज हु आर ऑलरेडी गेट एस्पायरेंट और विदाउट गेट एस्पायरेंट जो भी है, तो उनको पता है स्टैंडर्ड सिलेबस अपना क्या है, तो उसके हिसाब से आपको करना है। रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं, तो अपना जो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी है, ऑलरेडी अपना सक्सेस पैक स्टार्ट हो गया है, ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो गया है, तो यू कैन ज्वाइन सक्सेस पैक और यू कैन ज्वाइन MSP, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। सुपर पावरफुल ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी है, तो इसको फॉलो करके डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसको ही फॉलो करना है। सेकेंड, कोई भी बुक आपके पास बुक है, नोट्स है, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का क्विक रिवीजन ई बुक में आपको दे रहा हूँ अपने सक्सेस पैक में और MSP में, तो उसका भी यूज करके आप थ्योरी पार्ट को टैकल कर पाओगे इजीली। और जो मॉक टेस्ट है जो बाद में आएंगे, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी SBI ISO का एग्जाम हुआ, तो फर्स्ट टाइम जो है यूनिकली डिजाइन अवर मॉक टेस्ट पैक जो है लॉन्च हुआ था, तो सेम मॉडल जो है मैं फॉलो करूंगा CBI के लिए, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वो पसंद भी आएगा और उसका जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो जब भी मॉक टेस्ट अपने आएंगे बाद में मैं आपको अपडेट दूंगा, अभी फिलहाल मॉक टेस्ट पे फोकस नहीं करना है। अभी जो फेज है अपना वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग फेज है, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे ही फोकस करना है, बाकी ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। ओके, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है, तो यूट्यूब का भी आप हेल्प ले सकते हो। ओके, एवरीथिंग ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो यू कैन स्टडी इट, अप टू यू, बट मेन टाइम का ट्रैक रखो और ये फेज 1 जो मैंने बताया है उसमें ट्राई करो कि ये सब चीज़ें आपको हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपना जो स्टडी है आप मैनेज करो अच्छे से। जो मतलब फुल टाइम कर रहे हैं आराम से 8 to 10 12 आवर्स आप स्ट्रेच करो, ठीक है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है तो 4 to 5 आवर्स कंपल्सरी आपको देना है, और वीकेंड्स अगर आपको छुट्टी है तब यूटिलाइज करो अच्छे से। टाइमिंग अच्छा है, ठीक है, प्रॉपर टाइम है, मतलब मेरे हिसाब से चलोगे तो टाइम इज इनफ टू कंप्लीट द प्रिपरेशन, ठीक है। बट जस्ट आपको क्या करना है, कनेक्टेड रहना है अपना गवर्नमेंट जॉब के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, ताकि जो भी इनिशिएटिव या जो भी चीज़ें मैं आपको लाऊंगा यूपीएससी के लिए वो उधर में अपडेट देता रहूंगा, तो वो आपको उधर ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। बाकी यूपीएससी CBI के लिए आपको कंसेप्ट PDF चाहिए कि नहीं, ये मुझे आपको बताना है। ओके, और वो कैसे बताओगे, तो इस वीडियो को अगर लाइक्स एंड कमेंट, ठीक है, कमेंट अगर 100+ होंगे, लाइक भी 100+ और कमेंट भी 100+, तो फिर मैं काम शुरू कर दूंगा कंसेप्ट PDF फॉर यूपीएससी CBI, ठीक है। और जो अभी IBGO पब्लिक है, जो अभी अपना SBI ISO पब्लिक है, उनको पता है कंसेप्ट PDF क्या है अपना, ठीक है, और तो उसके हिसाब से आप करो। तो नीचे आपको कमेंट क्या करना है कंसेप्ट PDF के लिए कि PDF, ठीक है, तो ये आपको नीचे कमेंट करना है, और 100+ अगर कमेंट में दिखेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट दूंगा कि यस वी आर स्टार्टिंग, और वही अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू भी देता रहूंगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ भी अपडेट रहेगा एग्जाम का मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो, ताकि और भी जॉब्स जो आने वाले हैं उनका भी अपडेट आपको मिले, प्लस CBI का भी अपडेट आपको मिले। और जिनका भी अगेन लास्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी का, तो डेफिनेटली ज्वाइन MSP, दैट इज योर मास्टर पैक, टू प्रिपेयर अंडर मेंटरशिप ऑफ मी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्रिपेयर एंड